friends, viewers, learners, how are you? Today we are going to discuss spoken English or communication skills part 3rd. In earlier videos, part 1st and part 2nd, already we have discussed basic, fundamental or techniques. Now when we come to as a part 3rd, today we are going to discuss whether a common person can speak in the appropriate way or in fluent stream of the language or spoken. Here word stress, IPA and rhythm in sentence and tongue twisters we are going to discuss. Very first, this question is very general and everyone just earnestly started to ask whether he or she would be able to speak or not. Obviously, when a fellow puts a question, if this questioner thinks he can do, then no doubt can do. If doubt, no doubt can't do. But a certain fellow puts a question whether I myself would be able to speak fluently like non-native speakers and the native speaker. The native speaker means the mother tongue. Whether be able to speak is the native speakers as English. No doubt, if such a learner starts to maintain certain discipline and language, though no guarantee whether 100%, but I would like to ensure such speakers and the learners with this question certainly would be able to maintain and speak fluently as the native speakers. One thing I would like to clear, the variation in a spoken and the pronunciation, word, accent, sentence, accent, even this is with the native speakers. Because basically, linguistically, when we come to conclude and ponder about this question whether I myself would be able to speak fluently, appropriately, accurately, then we have to come to IPA. IPA, on the basis of IPA, we can maintain and we can ensure answer surely to this question. IPA means the association of the alphabet, International as Alphabet Association. That means a language has its two status, physical and spoken, oral. For this purpose, in language laboratory and the authorities of language, a board of language authority that is called IPA, International Phonetic Alphabet Association, on the recommendation of them, and how IPA has also alternative other second meaning. That means IPA, International Phonetic Alphabet, and means the sound is issued and
authorized by the authorities of the linguistic board, that is to be maintained, then no doubt then this question is subsided and earnestly answer. One can be a speaker, not only a speaker, good speaker. Now today we are going to discuss how one can be a good speaker. As a matter of fact, very first when we started to produce sound, when we start to tackle language linguistically on the ground of sound, that means alphabet is to be uttered, then a fragment, then word. And when we have word is isolatory in role and in connected or a linguistic role, that means a structural role. Isolatory pronunciation, the production of pronunciation is other one, but that certain word when is a contextual application, then it starts to give, to produce its pronunciation as per the application of the role. Then very first we have to try to learn, means how many types of words are in a sentence. In a sentence there are basically two types of words. One thing is to be remembered, one who wants to be a good speaker, means there are two types of words. Very first structural and a second contextual. Structural, that means grammatical, and contextual means noun, adverb, adjective and other structural prepositions, pronouns, conjunctions, etc. These are grammatical. And one thing is to be remembered, contextual words are accented as per the role. They have change in pronunciation, in sound production, while it's not with grammatical words mentioned here. And the words on the basis of a syllable, on the basis of syllable. Syllable means on the basis of a syllable contextual words as noun, verb, adverb, adjectives. There is a certain golden process that on syllabilification, on the process of the syllable, verb has secondary and others primary accent or the stress. Stress also two types, stressed, unstressed. That has a most important role in a spoken. हम यदि बात करें तो उसका स्पोकन में बहुत बहुत महत्व है। शब्द की हम जब बात करेंगे तो शब्द का उच्चारण बेसिकली सिलेबल बेस पर होगा, और सिलेबल हम दो प्रकार से होगा। एक हम जिसे कहेंगे स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। हमें ये ज्ञान होगा तो हम हमारे सेंटेंसेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे मेन जो बात है, हम ग्रामर के रूल्स बाद में देखें, सारी डिक्शनरी, सारे लिंग्विस्टिक रूल बाद में देखें, लेकिन सबसे पहली जो
एक एडवाइस रहेगी मेरी, जब कभी भी हमें सेंटेंस बोलना हो तो सेंटेंस में जितने भी हमारे ग्रामेटिकल वर्ड्स आए हैं उन्हें हम अनस्ट्रेस रखें, उन्हें उच्चारित न करें। आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आपके सेंटेंस में ऑटोमेटिक एक्सेंट, आपका साउंड प्रोडक्शन मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम एक सेंटेंस ऐसे वर्बली लेते हैं, ही हैज लॉस्ट हिज पेन। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ही प्रोनाउन है, इज आपका एक्सिलरी है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी है आपका, और लॉस्ट आपका मेन वर्ब है, हिज प्रोनाउन है, पेन आपका नाउन है। इसमें 2 वर्ड्स यानी 2 वर्ड ऐसे हैं जिनको हम स्ट्रेस करें और बाकी ग्रामेटिकल वर्ड्स को अनस्ट्रेस रखें तो सेंटेंस आपको पढ़ते समय बोलते समय होगा, he has lost his pen। दैट मीन्स यदि हमने ये सेंटेंस इस तरह से बोला, ऑटोमेटिक हमारा टोन, हम टोनेटिक प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात मेनली एक गोल्डन रूल फॉलो करें। क्या फॉलो करें? फिर दोबारा, जब कभी भी हमें इंग्लिश का सेंटेंस बोलना हो तो हम ग्रामेटिकल वर्ड्स को अनएक्सेंटेड रखें। दैट मीन्स हम उन्हें साउंड न दें, उन्हें हल्का हल्का सा उच्चारित करें और वाक्य में आने वाला, प्रयोग होने वाला नाउन संज्ञा, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव विशेषण, इनका उच्चारण हम एक्सेंटेड मीन्स स्ट्रेस्ड करें, जोड़ दें, बस आपका सेंटेंस मेंटेन हो जाएगा। यदि हम इस बात को ध्यान रखते हैं वर्ड में, ये हम सबसे मेन चीज यदि ध्यान रख के चलते हैं तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा अच्छा होना। अब इसके लिए हम आपसे एक बात करना चाह रहे हैं। स्पोकन यदि आप बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पोकन में 2 प्रकार के ऑर्गन्स काम आते हैं। एक आपका इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें लंग्स की, फेफड़ों की हम बात करें तो ये इंटरनल ऑर्गन्स में आएगा। यदि हम बात करें हमारे लिप्स की तो ये एक्सटर्नल उसमें आएगा। यदि हमारी टंग की बात करें तो इंटरनल में आएगा। आँख की बात करें एक्सटर्नल में आएगा। हमारा विंड पाइप जो है उसकी बात करें इंटरनल में आएगा। बात को आप समझें। स्पोकन में जितनी भी बीमारियां इधर उधर से जो ये पूरी तरह से ईमानदारी से यदि आंका जाए, माना जाए तो बार बार कह रहा हूं, रेडीमेड सेंटेंसेस आर नॉट सॉल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ स्पोकन। हमें इसका बहुत बेसिक लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट को समझना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे या हमें एज बिगिनर एक प्राइम स्पीकर के रूप में भी बात करें। हमारे सामने बेसिकल प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम बोल भी लेते हैं लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो एक अच्छा, जिसकी मदर टंग है, जिसकी मातृभाषा है, उसके जैसा न बोल पा रहे और न उसको हम यानी समझ पा रहे। कारण यही हो रहा। इसके लिए मैं जो समझता हूँ और जो बच्चों को जो सजेस्ट कर रहा हूँ और मैंने जो इतने सालों की पढ़ने पढ़ाने में जो महसूस किया, सबसे पहली यदि बात है तो वो ये कि हम हमारी टंग को, हमारी जीभ को, हमारे तल्लू को, हमारे साउंड ऑर्गन्स को प्रैक्टिस, रिहर्सल दें।
और स्पेशली हमारी टंग को। अदर डिफरेंट टाइप लैंग्वेजेज जो है उसमें डिफरेंट टाइप एक्सेंट प्रोसेस है, उच्चारण के अलग अलग प्रोसेस हैं। यदि हम किसी भी वर्ड को इंग्लिश में लेते हैं, उसी को यदि हम हिंदी में लेते हैं, उसके और उसके प्रोनाउंसिएशन में, एक्सेंट में बड़ा फर्क है। इसके लिए हम लैंग्वेज में टंग ट्विस्टर को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल ये फ्रैंकली कहना चाहूँगा कि आप इफ़ यू वांट टू हैव कमांड इन योर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, बहुत धाराप्रवाह बोलना चाहते हैं, तो आप हिंदी का एक सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूँ, उसको बार बार बी मेड इन योर बिजनेस। आप अपने कार्य में दक्षता लाने के लिए बिल्कुल अपने आप को भूलना सीखें। बी मेड इन योर बिजनेस एक सेंटेंस है जो अलंकारिक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ टंग ट्विस्टर है। हमारी जीव जो सबसे मेन कंपोनेंट इन स्पोकन इन साउंड प्रोडक्शन, उसके रियाज के लिए आप एक सेंटेंस हमेशा के लिए बार बार दोहराएं। इसे आप देखेंगे हमारी जो टंग है उसका ऊपर नीचे होना और उसका वर्टिकल असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरह से चलना, ये हमें वर्ड प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेगा। और आपका हिंदी सेंटेंस ये रहेगा, मैं पहले धीरे बोल रहा हूँ, फिर आपसे एक फ्लो में बोलकर आप इसको नोट करेंगे, सुनेंगे। घोड़ा सड़क पर फड़क फड़क कर दौड़ा। आप देखेंगे टंग की ट्विस्टिंग एक्सरसाइज देखिएगा। घोड़ा सड़क पर फड़क फड़क कर दौड़ा, घोड़ा सड़क पर फड़ फड़ कर दौड़ा। ये हमने जो किया, मैंने पहले स्लो बोला, फिर इसको स्पीड दिया, इसको फ्लो में बोला, फिर इसका स्पीड बढ़ाया। इसको हम स्पोकन में रेट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और रेट ऑफ स्पीच एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, हमें किस भाव बताना उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है। ऐसा बार बार आप बोलेंगे। और इसके लिए हम इंग्लिश में यदि बात करें तो आपको एक हम वो दे रहे हैं टर्म आपका स्ट्रेस्ड, टी आपका अनस्ट्रेस्ड। सेंटेंस में सिंबॉलिकली हमने ये बनाया, साउंड का सिंबल बनाया जो कि आपके सिलेबलिकेशन को फॉलो करेगा और सेंटेंस आपका बड़ा प्यारा हो जाएगा। एक स्टेज सबसे पहले एक सेंटेंस किए रहे टी टाम। यदि कोई सेंटेंस है तो वो इस तरह से चलेगा आपका। 4 वर्ड का यदि सेंटेंस है या 4 सिलेबल यदि उसमें है तो आपका चले टी टाम। अब इस टी टाम को हम रेट ऑफ स्पीच के बेस पर बार बार इसको रिहर्सल दें, इसको प्रैक्टिस करें। कैसे? जैसे हम रेट ऑफ स्पीच, जैसे मैं यहाँ पर इस एक सेंटेंस के लिए बोलूँगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ 1 स्लो है, 2 से ज़्यादा स्लो, 3 4, ऐसा स्पीड जल्दी यानी मेंटेन करना जिसको आप बोलते हैं ना फ्लुएंसी। तो इसमें रेट ऑफ स्पीच बनाने के लिए सेंटेंस है। यह स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे साउंड टंग ट्विस्टर के रूप में। मैं T1 टी टाम T2 टी टाम T3 टी टाम 4 टी टाम 5 टी टाम। दैट मीन्स हम सारे स्ट्रक्चर को इस तरह से बार बार एक्सरसाइज में लेंगे। सेकंड आपका टी टाम। थर्ड टी टाम। 4 टी टाम। फिफ्थ टाम टी। फिफ्थ टी टाम टी। अगेन
टी टी टाम टी। ये सेंटेंसेस, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये टंग ट्विस्टर्स है। आप इनको बार बार फॉलो करेंगे। आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मेन बातें सीखी वो ये आया कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तभी वर्ड लेवल प्रोनाउंसिएशन एक होगा, एक्यूरेसी पाएगा। अदरवाइज मातृभाषा के बोलने वालों में भी वेरिएशन रहता है, इसलिए इस बात की चिंता न करें। सबसे पहले बोलना स्टार्ट करें। सबसे पहला सवाल ये है कि हम बोलें, मुंह खोलें, इंग्लिश बोलें, और वो आप कर सकते हैं। जब आप इस बात के लिए रेडी हैं तो दूसरी बात ये समझेंगे कि आईपीए का जो दूसरा मीनिंग हो रहा है वो ये है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। उसका जो साउंड प्रोडक्शन है, जिसको इंटरनेशनल फोनेटिक बोर्ड जो अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करना, ये धीरे धीरे आएगा। हमने सीखा है कि जो आपका वर्ड होगा, वर्ड का एक आइसोलेटरी प्रोनाउंसिएशन होगा और एक वाक्य में प्रोनाउंसिएशन होगा। जो ही वर्ड को वाक्य में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वाक्य में दो प्रकार से होगा, और पहला उसका जो रोल होगा वो कंटेक्चुअल होगा। उसके चार आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से चार आपके पास आएंगे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और इनकी स्थिति में हमें वर्ब पर सेकेंडरी स्ट्रेस करना है और नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव में प्राइमरी स्ट्रेस करना है। आपके ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल जो वर्ड्स जितने भी बचे, आपके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कंजक्शंस, ये सारे जो है ये सेंटेंस में अनस्ट्रेस रखने, आपका सेंटेंस मेंटेन होगा। और इसके साथ साथ यदि आपने सेंटेंस पे ध्यान दिया हो तो बार बार आप इनका रियाज करें, इसको बार बार आप बोलें, रेट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी मेंटेन करें, तो आप पाएंगे कि रियली हमारी टंग को एक्सरसाइज मिल रही है। हमारी टंग, हम इंग्लिश में अलग अलग तरह से वर्ड बोलते हैं। देखिएगा, हिंदी में एक वर्ड आप एग्जाम्पल लेंगे, सुंदर। सुंदर, हमारी टंग पैरेलल रेल यानी आपका रेल की तरह चल रही है। जबकि इसको इंग्लिश में जब बोलेंगे तो हमारी टंग जो है उसमें बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। ब्यूटीफुल, दैट मीन्स क्या हुआ, जो हम बात कह रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में साउंड प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेटस, अलग अलग प्रोसेस है। और इस पर्पज से आप, हमने अभी आपसे बात की टी टर्म की स्टेजेस बताई और टी टर्म के रेट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप स्पीड दें चलते फिरते, तो उसको बार बार रियाज में लें। हिंदी का सेंटेंस ले लें, इस तरह के और भी आप सेंटेंसेस लें और इनको बार बार रिपीट करें, अगेन एंड अगेन, चलते फिरते दिमाग में इसको रिपीट करें, एक्सरसाइज लें। और नो डाउट आपने सेंटेंस तो सुन ही रखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यदि आप रियाज करते हैं तो आप भी एक उत्तम श्रेणी के स्पीकर बन सकते हैं। आप भी एक बहुत अच्छे लिंग्विस्टिक स्पीकर बन सकते हैं, नो डाउट। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा, ये आप महसूस करेंगे कि रियली स्पोकन पर्पज से हमें भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मूल रूट को पकड़ें। हम क्या कर रहे हैं, मूल रूट, मूल जड़ पर, मूल बीमारी पर नहीं जा पा रहे। मैंने जो रियलाइज किया, तो आपको भी ज़रा इस वीडियो के माध्यम से महसूस होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।